classification, there are two types of diseases as generally we can see. Chronic acute disease and chronic disease. Like common cold, they are spending in our body for 4 and 3 days only. After that, they already our body create immune to create a common cold. Such kind of disease called acute disease. Like cancer, diabetes, and AIDS. The such kind of disease having in our body, remaining in our body for a long time, even sometimes in a conditions they taking for whole life. That's and such kind of disease called chronic disease. So there are two types: acute disease and chronic disease. The second classification, as according they are contaminated, as according they are transmitted from one person to the another person or remaining to a particular person. There are two types: communicable and non-communicable. Like जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसमें पैथोजन डायरेक्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन या डिजीज होस्ट से दूसरे डिजीज होस्ट तक जाता है, बट जो इनडायरेक्ट होता है उसके अंदर एक मीडिएटर होना जरूरी है. लाइक मॉस्किटो, मलेरिया पैरासाइट इज अ प्लाज्मोडियम that is spread because of the help of female anopheles. डेंगू में एक मॉस्किटो होता है क्यूलेक्स, और उसी तरह से यहाँ पर एक फ्लैरेसिस डिजीज है विचेरिया बैंकोफेटाइज, द पैथोजेनिक एजेंट ऑफ दिस डिजीज, बट इज स्प्रेड बाय द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएटर. दैट्स इंटरमीडिएटर कॉल वेक्टर. दिस इज क्यूलेक्स मॉस्किटो, राइट. तो उसी तरह से मैंने बात करी थी कल टीनियासिस. Teniasis pathogenic agent in a Taenia solium. That Taenia solium is from the category of platyhelminthes, right? So pathogenic agent of the Teniasis disease is Taenia solium that spread by the help of an intermediator or vector that called pig, P-I-G, pig, right? So these are the particular varieties of disease we can see. And third classification, if they are moving from one generation to the another generation or remaining to a particular generation, there are two types of diseases. Congenital disease, such kind of disease happens in our body because of the mutation, because of the sudden changes in genes and chromosomal numbers. Like Mendelian disease we have already study about in chapter number 5 chapter में हम ये इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस. सच काइंड ऑफ द डिजीज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स occurs in our body because of the mutation, because of the genes changes and the chromosomal changes जो जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज होते हैं. they also can move from the one generation to the another generation, from parents to the offspring progeny. Such kind of disease called chromosomal disorders or chromosomal disorders are Klinefelter syndrome, Turner syndrome, and Down syndrome, right? The second category of disease, they never spread from one generation to the next generation. They remain to a particular generation. They never transmit, they never inherited from the parental body to their offspring. Such kind of the disease, हम नहीं देख सकते. These all are the disease. Such kind of the disease all are acquired diseases. Acquired diseases, they rises in our body after our birth. हमारे birth के बाद में होती है. उसके बाद हमने कल बात करी थी agents. Which agents or which factors are responsible for the disease? May be virus, may be fungus, may be bacteria, may be worms, or may be any kind of other factors that are not related to biological aspect. जो biological factor नहीं है, like डस्ट हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, बॉडी के अंदर किसी तरह का मैलन्यूट्रिशन हो सकता है, डिफिशियंसी हो सकती है. इस तरह के डिजीजेस बेसिकली उनकी वजह से हो सकता है, राइट. तो आज हम आ जाएं कॉमन डिजीजेस इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बींग्स. सम कॉमन डिजीजेस आर, मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया है यहाँ पर अपनी स्टडी को थोड़ा सा प्रॉपर करने के लिए, ठीक है. डिजीज, pathogen, transmission, effects or symptoms, and treatment and preventions. We have to go through this according this guideline. इस guidelines के according अपन को चलना है. First number pathogenic जो disease है, that number 1 is typhoid. Salmonella typhi. This is the typhoid.
typhoid bacteria. This is Salmonella typhi is the bacteria, right? Then after transmission, infected food means contaminated food, contaminated water, और contaminated food and contaminated water होंगे तो वो डिस्कार्ड किया जाएगा एज ए वेस्टेज, एज ए लेटरिंग, जिसको हम फैसेस बोलते हैं, सीवेज में, और सीवेज के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बट कैन स्प्रेड बाय इंटरमीडिएट, दैट इंटरमीडिएट इज हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई टाइफॉइड के फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. हाउस फ्लाई इज ए इंटरमीडिएटर हियर, वेक्टर that is responsible to spread the Salmonella typhoidi. Salmonella typhoidi. इस Salmonella typhoidi के लिए हाउस फ्लाई है, वो एक इंटरमीडिएट और वेक्टर की तरह काम कर रही है. इन्फेक्टेड फूड, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के प्रेजेंसी यदि इन पैथोजेनिक एजेंट की होती तो कंटामिनेटेड हो जाता है, हाउस फ्लाई उसको एक जगह से दूसरी ले जाती है. नॉट ओनली हाउस फ्लाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टाइफाइड, इट्स आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलेरा. कॉलेरा भी एक डिजीज होता है, कॉलेरी बैक्टीरिया, कॉमा बैक्टीरिया की वजह से फैलता है. इफेक्ट्स और सिम्टम्स वी कैन सी इन आवर बॉडी: फीवर, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, इन्फ्लामिनेशन इन इंटेस्टाइन, और इवन इन a critical position the typhoid may be reason of the blocking of our alimentary canal, especially in the part of small intestine. ब्लॉक कर सकता है. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करने से पहले डायग्नोस होना जरूरी है. हमारा एक पर्टिकुलर एक टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो डायग्नोसिस टेस्ट है, वो लिम्फ में किया जाता है, प्लाज्मा में किया जाता है, विडाइल टेस्ट. विडाइल टेस्ट के अंदर इस पर्टिकुलर टाइफाइडी बैक्टीरिया की प्रेजेंसी को देखा जाता है. विडाइल टेस्ट इज द ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस, राइट. आफ्टर यदि हम बात करें मेडिसिन और एंटीबायोटिक को दी जाती है उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रिवेंशन की. सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ द सीवीज करके, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सैनिटरी और सैनिटाइजर जो भी प्रैक्टिसेस है उनको यूज करके हम इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, सेकंड, निमोनिया और कॉमन कोल्ड को हम यहां पर डिफर कर ले. निमोनिया भी वायरस की वजह से होता है, सॉरी, निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है. दिस इज अ बैक्टीरिया, बट राइनो वायरस इज अ वायरस, VIS वायरस, पहले से पता चल रहा है वायरस है. तो निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से हो रहा है. निमोनिया का मेन जो ट्रांसमिशन होता है किसकी वजह से है, तो पेशेंट जहां जहां थूकता है, क्योंकि लंग्स में एक कैविटी होती है, दैट्स कॉल्ड प्लूरल कैविटी. प्लूरल कैविटी में एक डिस्चार्ज क्रिएट होता है इन द केस ऑफ इन्फेक्शन बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. दिस इज द पर्टिकुलर बैक्टीरिया विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया. अफेक्टेड ऑर्गन्स is the pleural cavity of the lungs. प्लूरल कैविटी में स्पेशल टाइप की जो म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस सेल्स होती हैं, वो डिस्चार्ज करती है. कौन सा डिस्चार्ज करती है? येलो ग्रीनिश. ये जो येलो ग्रीनिश जो डिस्चार्ज होता है वो पेशेंट अपने स्पूटम में निकालता है, थूक में निकालता है, राइट. तो येलो ग्रीनिश फ्लूइड फ्रॉम लंग्स, एंड ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन होने की पोजीशन में, बहुत क्रॉनिक या लंबे टाइम तक, क्रॉनिक नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम तक इंफेक्शन होने की पोजीशन के अंदर इस तरह का जो भी बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशली जो फिंगर टिप्स होती हैं और जो लिप्स वाला पोर्शन होता है वो ब्राउनिश, वो है वो ग्रीनिश, वो पर्पल लाइट कलर का होने लग जाता है. दैट इज द सिंबल्स ऑफ सिग्नेचर ऑफ निमोनिया. येलो ग्रीनिश फ्लूइड फ्रॉम लंग्स and purple lips and fingers are the symptoms or effects which we can see in a body which is the particular person who is infected for pneumonia, right. water and cold prevention रखा जाए, पानी से और ठंड से बचा रखा जाए. ये रहने से बेसिकली क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो लंग्स तक है वो इस तरह की मॉइस्चर नहीं पहुंचेगी. जब बॉडी में लंग्स तक मॉइस्चर नहीं पहुंचेगी तो सच काइंड ऑफ डिजीज वी कांट बी सीन इन आवर बॉडी. कॉमन कोल्ड, राइनोवायरस इज द कॉजिंग पैथोजेनिक एजेंट. ड्रॉपलेट्स ऑफ एयर, जब कोई भी स्नीच करता है,
जब भी कोई छींकता है तो एक एरा बन जाता है 2 से 3 मीटर तक का, जिसके अंदर हवा में माइक्रो स्प्रेडिंग मिलियन ट्रिलियंस नंबर्स ऑफ स्प्रेडिंग वाटर ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं। हर एक ड्रॉपलेट्स के अंदर बेसिकली क्या हो सकता है, 1000 नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं। ड्रॉपलेट्स एयर के थ्रू ये फैलता है। नेजल पोर्शन आई, नेजल पोर्शन इज द इन्फेक्टेड एरिया, आईज इन्फेक्टेड, और स्पेशली जो थ्रोट एरिया होता है स्पेशली जो थ्रोट एरिया होता है वो थ्रोट एरिया ज्यादा इन्फेक्टेड पोर्शन है। ध्यान रखना, निमोनिया के अंदर लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं और कॉमन कोल्ड के अंदर यहां तक का पोर्शन, यानी कि ये दिस इज द थ्रोट एरिया, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ब्रोनकाई वाले एरिया आ गया। दिस इज द नेजल कैविटी, नोज और आईज इंफेक्शन एरिया, राइट। द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इज वाटर और कोल्ड से बचा जाए, ठीक है। अमेबियासिस, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। अमेबियासिस, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका इज द पैथोजेनिक एजेंट। दिस इज प्रोटोजोआ। पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड लोअर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मोस्ट इन्फेक्शियस और symptomatic big part of our body, or proper sanitation may be the preventions or treatment of this such kind of the disease, right। कभी भी पानी को ऐसी जगह पे ना पिए जो बेसिकली नेचर हो। जैसे हम बात करें डेजर्ट एरिया में पानी को स्टोर करके रखा जाता है, स्पेशली जैसलमेर है, बाड़मेर है, डूंगरपुर है, इन इलाकों के अंदर। तो वहां पर क्या हो सकता है, इस तरह का एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जनरेट हो सकता है। और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के जो सिस्ट हो सकते हैं, एग्स होते हैं, पर्टिकुलर उनका जो इंसेस्टेशन मतलब बैक्टीरिया जब बहुत ही एडवर्स कंडीशन में होता है तो वो प्रोटेक्टिंग लेयर प्रोटेक्ट कर लेता है, और प्रोटेक्टिंग लेयर जो प्रिवेंट उस बॉडी में करती है वो हमारी बॉडी के अंदर ला करके स्टोमक में डाइजेस्ट कर देती है। ऐसे पोजीशन में अमीबा अपनी 1000 कॉपीज हमारे बॉडी में आने के बाद में बनाता है। इसलिए हमें पॉल्यूटेड वाटर को बॉयल करके पीना है। बेसिकली जो सीजनल हम बात करें यहाँ पर रेनी सीजन में इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। स्पेशली बहुत सी बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर जो वाटर वर्क्स की जो पाइपलाइन होती है उसके साथ साथ सीवेज लाइन भी चलती है, वहां इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो सकता है। फोर्थ के बाद आ जाए फिफ्थ पर, राउंड वर्म एस्केरिस लुम्ब्रिकेसिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस इज द पैथोजेनिक एजेंट ऑफ एस्केरियासिस। फूड, वाटर और सैंड, जो इन्फेक्टेड फूड होता है, वाटर होता है, सैंड होता है, उनके अंदर होता है। बेसिकली जिसको एस्केरियासिस हो चुका है, स्पेशली बच्चों में होता है, जिनके अंदर ये एस्केरियासिस हो चुका है, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्टेड पार्ट क्रिएट होते हैं और फेसेस के साथ में, उसके लेटरिन के साथ में इनके एग्स है वो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। जो एग्स बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं वो कई दिनों तक सॉइल में और सैंड में पड़े रहते हैं। यदि कोई ऐसा बच्चा उस सैंड में खेलता है या उस जगह पर किसी तरह का भी क्रॉपिंग और एग्रीकल्चर किया जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर उन एस्केरिस लुम्ब्रिकेसिस के जो एग्स हैं उन वेजिटेबल्स में और पानी और फूड के थ्रू या सैंड के थ्रू बच्चों के अंगुलियों के अंदर जो निशान होते हैं या बेसिकली जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनके अंदर इतने माइक्रो साइज में होते हैं फिंगरप्रिंट्स, या फिर जो नेल्स होते हैं उनके अंदर ये स्टिक होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। एब्डोमिनल पेन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज होना, दिस इज द वेरी आइडेंटिकल इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स ऑफ द एस्केरियासिस, राइट। डिजीज का पूरा नाम है एस्केरियासिस, पूरा नहीं लिखा है मैंने, एस्केरियासिस, राइट। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ द फेसेस, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ द इन द नेचर और हैबिटाट। हमारी हैबिटाट में ये होना चाहिए कि जब भी हम घर में घुसे, जब भी हम घर की चीजों को टच करें या खाना वाना खाने से पहले प्रॉपर तरह से 20 सेकंड तक अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो ले, जिस तरह एस्केरिस के साथ साथ बाकी सारे पैथोजेनिक एजेंट भी वहां से रिमूव किए जा सके। दिस इज प्रॉपर सैनिटाइजेशन हैबिट्स। देन आफ्टर फिलारेसिस, फिलारेसिस को एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है, एलिफेंटियासिस, राइट। So elephantiasis and filariasis is the same thing. Filariasis is a fever, जिसको हम फीवर बोल रहे हैं। Wuchereria branchiofutae, Wuchereria branchiofutae such kind of the particular round worm है, ये इस तरह का राउंड वर्म जितने भी आते हैं
वो किस में आते हैं? एस्के हेलमंथीज में। क्यूलेक्स मस्किटो इज द इंटरमीडिएटर, दिस इज द इंटरमीडिएटर और वेक्टर, इंटरमीडिएटर और वेक्टर, ये इंटरमीडिएटर और वेक्टर है। लिम्फेटिक वेसल्स, जो लोअर पार्ट्स की लिम्फेटिक वेसल्स होती है, स्पेशली लेग पोर्शंस, लेग यानी कि टांगों के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, उनके ब्लॉकेज हो जाने से टांगों के अंदर सूजन आ जाती है, स्वलन फॉर्म आ जाता है, और जो ब्लॉकेज होने से मसल्स का ज्यादा स्वलन होने से उनमें एनलार्जमेंट हो जाता है। दिस एनलार्जमेंट लुक लाइक है लेग और फीट ऑफ एलिफेंट, ये एलिफेंट जैसे पैरों के जैसे नजर आते हैं, इस तरह के पेशेंट्स में पैर उसके लेग्स नजर आते हैं। दैट्स काइंड सच काइंड ऑफ डिजीज कॉल्ड एलिफेंटियासिस, यानी कि उनकी टांगे एलिफेंट की टांगों की तरह नजर आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। इराडिकेशन ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो, मॉस्किटो को ही मार दिया जाए, बिकॉज मॉस्किटो इज ओनली रेस्पॉन्सिव फॉर द स्प्रेडिंग और लाइक इंटरमीडिएटर ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सच काइंड ऑफ डिजीजेस, राइट। 7 नंबर, रिंगवर्म। ये हम एक तरह से रिंगवर्म मान रहे हैं, वर्म नहीं है एक्चुअली, ये क्या है? फंगस है, फॉल्स फंगस, फंगी। माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटन फंगी है, जो बॉडी में स्किन के अंदर, हेयर्स के अंदर क्या क्रिएट कर देते हैं? इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, स्किन के ऊपर राउंड राउंड से डॉटेड फॉर्म बन जाती है, दैट्स काइंड इज कॉल्ड रिंगवर्म, राइट। रिंग में बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वर्म घूम रहा है, बट नॉट, दिस इज द डिजीज नॉट बिकॉज ऑफ एनी वर्म, दिस इज बिकॉज ऑफ फंगी। ड्राई स्केली लेसेंस ऑन स्किन, स्किन के ऊपर क्या क्रिएट होने लग जाते हैं? थोड़े थोड़े स्किन्स निकलने लग जाती है, ड्राई और सर्कल्स बनने लग जाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इरिटेशन क्रिएट करता है। इंटेंस इचिंग इन ए स्किन एंड ग्रोइंग टॉयज, जितने भी ये ग्रोइंग्स होते हैं, ग्रोइंग्स फॉर्म होते हैं, जॉइंट्स होते हैं जहां फिंगर्स के, स्पेशली इन ग्रोइंग्स में, और लेग्स के अंदर भी, ग्रोइंग्स के अंदर उस स्पॉन्स में, तो फिंगर्स के इन बिटवीन द पर्टिकुलर जॉइंट्स दैट कॉल ग्रोइंग रीजन्स of the fingers and growing region of the toys, वहां इंटेंस इचिंग होती है, क्योंकि यहां पर मॉइस्चर रुकने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो ज्यादातर है वो इस जगह पर होने के चांसेस रहते हैं। बेसिकली डिपेंड इस पे भी करता है कि फंगस यदि स्किन पर बहुत लंबे टाइम तक रुक चुकी है, तो दैट्स मे बी द रिंगवर्म, द रीजन ऑफ रिंगवर्म। प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, हाथ वगैरह धोएं, मॉइस्चर आपकी बॉडी पे नहीं रखना चाहिए, स्पेशली इस तरह की क्रीम्स आती हैं जो इस तरह की फंगस को रिमूव कर सकती है। कैंडिडा, ये कैंडिडा बहुत ज्यादा पॉपुलर एक तरह का टॉल्क है, जिसको इस तरह से यूज किया जा सकता है स्पेशली। उसके बाद 8 नंबर मलेरिया। देखा गया है कि सबसे पहले इसके बारे में एक जो आइडेंटिफिकेशन की गई थी, इस डिजीज को हम कहा जाता है कि ये एक डर्ट एरिया या एयर से फैलने वाला डिजीज था, पर रोनाल्ड रोस एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सर्टिफाइड किया कि द डिजीज इज नॉट बिकॉज ऑफ द बैड एरिया, दिस इज बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर पैथोजेनिक एजेंट, दैट पैथोजेनिक एजेंट इज प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम की 4 वेराइटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट टाइप्स, different 4 varieties or species of plasmodium, they can spread the malaria types. Plasmodium malaria, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale and Plasmodium falciparum. फाल्सीफेरम सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इस तरह का इन्फेक्शन से वो ब्रेन तक फैल जाता है और ब्रेन में फीवर हो जाता है, इसे ब्रेन फीवर के नाम से भी बोला जाता है, राइट। फीमेल एनाफिल्स इज द इंटरमीडिएटर, दिस इज द इंटरमीडिएटर, ये इंटरमीडिएटर है। देखिए जहां जहां पे भी इंटरमीडिएटर आ रहे हैं या वेक्टर्स आ रहे हैं, वो स्पेशली इनका स्प्रेडिंग है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। ये जैसे ये है इंटरमीडिएटर है, दिस इज आल्सो इंटरमीडिएटर, दिस हैविंग आल्सो इंटरमीडिएट। तो ये बीमारी कभी भी डायरेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि दे इन्वॉल्विंग मीडिएटर, दैट इंटरमीडिएटर और मीडिएटर आल्सो कॉल्ड वेक्टर। चिलिंग फीवर, लीवर में पेन होना, लीवर का डिजनरेशन स्टार्ट होना, हीमोग्लोबिन डिक्लाइन होना और स्प्लीन एनलार्जमेंट, राइट। तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वो जैसे हमारे ब्लड में आता है, ब्लड के अंदर एक सर्कल पूरा करता है, जिसे ब्लड साइजोगेनी कहते हैं, ब्लड साइजोगेनी। इस ब्लड में लीवर में जाने से पहले
लीवर में जाने से पहले अपने मल्टीप्लिकेशन करता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको कोई फीमेल मॉस्किटो काटता है तो उसकी सलाइवा में इसका क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज का पैथोजेनिक एजेंट होता है। जब वो कट करता है हमारे ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड के अंदर 1000 नंबर्स ऑफ द मलेरिया इन्फेक्शियस साइट छोड़ दी जाती है, और मलेरिया की जो इन्फेक्टेड हाईली इन्फेक्टेड जो स्टेज होती है, दैट्स कॉल्ड स्पोरोजॉइट। उसको स्पोरोजॉइट के नाम से बोला जाता है, राइट। मलेरिया की सारी स्टेजेस है वो इन्फेक्शियस नहीं है या डेंजरस पोजीशन में नहीं है। स्पोरोजॉइट आर ओनली कंडीशंस और स्टेज ऑफ द मलेरिया दैट कैन स्प्रेड इन अवर बॉडी। मलेरिया फैला सकती है, बट ये इसका जो भी कल्चर होता है वो डायरेक्ट नहीं आ सकता, बिकॉज ये एयर के कांटेक्ट में आते मर सकता है। जो फीमेल एनाफेल्स की जो माउथ पार्ट्स होते हैं, फीमेल एनाफेल्स की जो सलाइवा होती है, वो इसको बहुत अच्छा कल्चर मीडियम दे सकती है। और फीमेल एनाफेल्स के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स को जो कट करते हैं, तो वो क्या सक कर रहे हैं, ब्लड कर रहे हैं, ब्लड सकिंग कर रहे हैं। बट उस ब्लड सकिंग के चक्कर के अंदर उनकी सलाइवा से निकल करके ये स्पोरोजॉइट कंडीशंस, ये स्पोरोजॉइट स्टेज ऑफ मलेरिया हमारी बॉडी में ट्रिगिंग हो जाती है, अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद में सीधा लीवर में अटैक करता है। लीवर में क्या लेता है, ग्लाइकोजन लेता है, और ग्लाइकोजन लेने के बाद में अपनी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेंथ को और ज्यादा पावरफुल कर लेता है, नंबर्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री होती है इनकी आरबीसी के अंदर, और आरबीसी में एंटर होने के बाद में किसको फीड करते हैं, ये करते हैं हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा अमाउंट यदि ये फीड करने के बाद उसे हीमोजॉइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हीमोजॉइन जो पार्टिकल्स होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल है। जब ये टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमें बहुत पेन होता है, राइट। तो आरबीसी के अंदर जो मिलियन ट्रिलियंस नंबर्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट अंदर घुसे हैं, प्लाज्मोडियम घुसे हैं, वो कई लाखों करोड़ों आरबीसी को बर्स्ट करते हैं, एक साथ में ब्लास्ट करेंगे। जब आरबीसी को ब्लास्ट करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी रेट डाउन हो जाएगी, एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी, और चिलिंग लग करके हमें फीवर आएगा, राइट। इस तरह से मलेरिया के होने पर एक तो लीवर पर इफेक्ट हो गया, दूसरा हो गया आरबीसी, और तीसरा हो गया हीमोग्लोबिन। इन तीनों चीजों के होने के साथ साथ जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई है, उन आरबीसी को स्टोर कहां किया जाता है, वो ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी इज अ स्प्लीन। तो स्प्लीन का साइज भी बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आरबीसी जितनी भी डेड हो रही है वो स्प्लीन में स्टोर की जा रही है। इस तरह से पर्टिकुलर जो पेशेंट हु इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द मलेरिया, उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, अनेमिया हो जाएगा, चिलिंग फीवर आएगा, राइट। और बेसिकली उनकी बॉडी के अंदर एक येलोइनिश बढ़ जाएगा, जिससे पीलिया होने के चांसेस, जॉइंडिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लीवर के इनबैलेंस होने से जॉइंडिस होता है, राइट। तो जॉइंडिस किसी तरह से पैथोजेनिक एजेंट से फैलने वाला बीमारी नहीं है, यहां पर इस मलेरिया की साइड इफेक्ट्स हैं। चिलिंग फीवर, लीवर में डैमेज होना, हीमोग्लोबिन डिक्लाइन होना, स्प्लिंग एनलार्जमेंट, इराडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज। मॉस्किटोज को जनरली जो मॉस्किटोज होते हैं वो कूलर में, स्टिंग इन वाटर में, मॉइस्चर प्लेसेस में, स्पेशली आपके घर के अंदर जो पुराने कपड़े होते हैं वहां पर, जो आपके शेल्टर्स होते हैं, आपके जो कबर्ड्स होते हैं, वहां पर मलेरिया पैरासाइट है, ये मलेरिया मॉस्किटो जनरेट होते हैं। तो उस जगह पर मलेरिया या इस तरह के जितने भी मॉस्किटोज है उनको रुकने ना दिया जाए। इवन फीमेल एनाफेल्स हो या क्यूलेक्स हो या एडीज हो, किसी तरह का मच्छर हो, ये बेसिकली ये किसी न किसी तरह का बीमारी फैलाएगा। ध्यान रखना, फीमेल एनाफेल्स इज रेस्पॉन्सिबल और वेक्टर फॉर व्हाट, मलेरिया। सेकेंड, क्यूलेक्स इज अ वेक्टर फॉर व्हाट, फ्लैरेसिस। फ्लैरेसिस के लिए है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो। एंड एडीज इज रेस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड और एज वेक्टर ऑफ डेंगू के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डेंगू वायरस की वजह से होने वाला डिजीज। ध्यान रखना, इंटरमीडिएटर इन सबके बता दिए। इराडिकेशन ऑफ मॉस्किटो। एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome is the syndrome, not a disease, because this is a state, हमारी बॉडी का वो स्टेट है जहां पर इम्यूनिटी सिस्टम के डिक्लाइन हो जाने से जितने भी रैंडम चांसेस डिजीज हैं वो सारे होने लग जाते हैं। यदि मैं कहूं कि एड्स एक पर्टिकुलर डिजीज है जो क्लस्टर ऑफ डिजीज है, क्लस्टर ऑफ डिजीज पूरा कलेक्शन होके आ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम का जो दरवाजा है वो वीक हो चुका है, और हर कोई अंदर आ रहा है, हर तरह की डिजीज और पैथोजेनिक अंदर आ रहे हैं। तो हमारी बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा कलेक्टिव टाइप की डिजीज से कलेक्ट हो जाएगी, हमारी बॉडी में बहुत से पैथोजेनिक एजेंट एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो अक्वायर्ड पर्टिकुलर जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजेनिक एजेंट आता है तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को अक्वायर्ड किया जाता है, उसको नॉलेज करके, उसको फीड करके, उसको रीड करके। बट
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो एचआईवी की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी जो सिंड्रोम होता है एचआईवी वायरस की वजह से हो रहा है ये डिजीज। तो एचआईवी वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाकर सबसे पहले इम्यून सिस्टम को डिक्लाइन करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। इस तरह से हम जितने भी पर्टिकुलर सिम्टम्स देख रहे हैं दे आर नॉट सो स्पेसिफिक रिगार्डिंग टू द एड्स को लेकर के इतने ज्यादा सिम्टम्स वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं है, बट हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिक्लाइन होने से हमारी बॉडी में ये जो सिस्टम्स अनकंट्रोल फॉर्म में होगा वो डिजास्टर फॉर्म होगा। इस तरह से इसको क्योर नहीं किया जा सकता, इस तरह से इसको प्री डायग्नोस भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसके जो सिम्टम्स हैं वो एचआईवी जनरली जो हम ट्रेडिशनल जो भी टेस्टिंग करते हैं वो ब्लड में करते हैं, प्लाज्मा में करते हैं, स्पूटम में करते हैं, फेसिस में करते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि इस एरिया में पर्टिकुलर जो पैथोजेनिक एजेंट है तभी डायग्नोस किया जा सकता है जिनका नंबर इन बिलियन ट्रिलियंस नंबर्स में हो, राइट। ब्लड में जब हम कोई सैंपल लेते हैं तो ब्लड में सैंपल लेने की कंडीशन में वो ब्लड के अंदर जब मिलियन ट्रिलियंस नंबर्स में आ जाएगा तब जाकर डायग्नोस किया जाएगा। यानी कि ये वायरस यदि बिलियन ट्रिलियंस नंबर्स यदि हमारे ब्लड में आएगा तब उसको डायग्नोस किया जाएगा। उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एड्स को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, क्योर भी नहीं किया जा सकता। तो तब तक तो हमारी बॉडी में बहुत भयंकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यही प्रॉब्लम है एड्स की। एड्स जब तक डायग्नोस किया जाता है तब तक हमारी बॉडी में बहुत लंबी स्टेज में पहुंच चुका होता है। वहां पर उस एड्स के सिम्टम्स को, उस एड्स के पैथोजेनिक एजेंट्स को डिस्ट्रॉय करना इजी नहीं है, हालांकि वैसे भी इजी नहीं है, बट प्री डायग्नोस किए जाने पर इस तरह के पेशेंट्स को जो पेनफुल लाइफ है उसके रिलैक्स किया जा सकता है। मे बी थोड़ा सा उसके जो डेथ है वो थोड़ी सी सही हो जाए। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, एचआईवी इज अ कॉजिंग एजेंट और वायरस। यहां पर ध्यान रखना ये जो एचआईवी है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डबल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डबल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इस तरह के जो बैक्टीरिया, इस तरह के वायरसेस होते हैं उनको कहते हैं रेट्रोवायरस। ट्रिपल लेयर्ड कैप्सिड से मिलकर बना होता है। लेयर जो इनकी कैप्सिड होती है वायरस में दो ही चीज है, न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं, बाहर की तरफ कैप्सिड होता है और अंदर की तरफ होता है इनका जेनेटिकल मटेरियल। जेनेटिकल मटेरियल right? So HIV particular a complicated types of virus which is surrounded by different three capsid layers. First phospholipid layer, second protein layer और third protein layer. इतनी three layered highly shielded जो capsid area होता है that make more resistable to the HIV. HIV को बहुत ज्यादा रेसिस्टेबल बना देता। कोई भी ड्रग्स या पर्टिकुलर कोई भी तरह का जो एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स इस पर असर करे उससे पहले एचआईवी अपनी कई मिलियन ट्रिलियंस कॉपीज तैयार कर लेता है, राइट। सो सेकेंड जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, डबल मॉलिक्यूल है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डबल मॉलिक्यूल पर स्पेसिफिक टाइप का एक एंजाइम होता है दैट्स कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जब भी हमारी बॉडी के अंदर यह एंटर करता है वायरस तब इसका सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए है वो एंटर कर जाता है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद आरएनए से पहले डीएनए में कन्वर्ट होता है और डीएनए आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होने की इस फिनोमेनन को कहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए के बनने के बाद में ही हमारे बॉडी के जेनेटिकल मटेरियल के साथ अटैचमेंट ले लेता है। इस तरह से जैसे जैसे हमारा जेनेटिकल मटेरियल अटैचमेंट लेने के बाद जिस तरह से हमारा न्यूक्लियर डीएनए जैसे जैसे आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा, इसका जो कन्वर्टेड जेनेटिकल मटेरियल जो अब डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है वो भी हमारे साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बनने वाली जितने भी नए डीएनए हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं वो इन्फेक्टेड होगी। इन्फेक्टेड फ्रॉम व्हाट? एचआईवी। इस तरह का फिनोमेनन हमारी बॉडी में कर रहा है। इस तरह से एक बार एक पर्टिकुलर सेल में मिलियन ट्रिलियंस नंबर्स ऑफ कॉपीज ऑफ वायरस एचआईवी बनने के बाद वो सेल्स ऑफ ब्लास्ट हो जाती है और ब्लास्ट होने के बाद नया बना हुआ एचआईवी फिर नई सेल्स पर इसी तरह से अटैक करता है। सेक्सुअल कॉइटस, सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसमिशन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन और एचआईवी पॉजिटिव, ड्रग्स
ड्रग्स एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू बहुत से लोगों को एक इंजेक्शन से है वो ड्रग्स दी जाती है, तो इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। और प्लासेंटा, प्लासेंटा मीन्स एन इन्फेक्टेड मदर से उसके प्लासेंटा से थ्रू उसके बच्चे के अंदर भी ये फैल सकता है। दीज आर द ट्रांसमिशन, राइट। इम्यून सिस्टम को डिक्लाइन करना, टी लिम्फोसाइट, स्पेशली जो टी लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी होती है वो टी लिम्फोसाइट कौन सी, टी हेल्पर सेल्स, T4 हेल्पर सेल्स। ये T4 हेल्पर सेल्स को डिक्लाइन और डैमेज कर देता है। अब ये T हेल्पर सेल्स क्या है, इसी चैप्टर के अंदर आगे हम पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम में एक पर्टिकुलर जो एक्वायर किए जाने वाला फिनोमेनन है वो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल से होता है, WBC का वेराइटी, दैट कॉल लिम्फोसाइट, राइट। लिम्फोसाइट आर टू टाइप्स। ये लिम्फोसाइट जो डेवलप होती है बोन मैरो में उसे बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट जो डेवलप होती है हमारी थाइमस ग्लैंड में, दैट्स कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की भी 4 वेराइटीज होती हैं, हेल्पर, किलर एंड सप्रेसर। हेल्पर क्या करती है, जो भी पर्टिकुलर हमारी बॉडी के अंदर आने वाला पैथोजेनिक एजेंट है या एंटीजन है, एक्सटर्नल कोई भी प्रोटीन या पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम कौन कर रहा है, हेल्पर सेल्स। ये हेल्पर सेल इन मैसेजेस को, इन डेटास को कहां पर ट्रांसफर करती है, किलर सेल्स पे, जिसको हम बोलते हैं किलर टी लिम्फोसाइट्स। वो किलिंग करने का काम करेगी। और सप्रेस, इन दोनों की हाईली सेंसिटिव पोजीशन पर सप्रेस यानी कंट्रोल करने का काम करेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन करने वाला रिसेप्शनिस्ट ही है, गार्ड यदि डिक्लाइन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस पोजीशन में हमारी बॉडी का अवेयरनेस कैसे मिलेगी, हमारी बॉडी को नॉलेज कैसे मिलेगा कि हमारी बॉडी में कौन सा इंजेक्शन, कौन सा एंटीजन और पैथोजेनिक एजेंट आ चुका है। तो सबसे पहले ये जो HIV वायरस है हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स को डिक्लाइन करता है, डिस्ट्रॉय करता है, टी लिम्फोसाइट, T4 हेल्पर सेल्स को। और T4 हेल्पर सेल्स को करने से हमारी बॉडी के जितने भी मोटी लिम्फोसाइट नोड्स होती हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती है। इन्फेक्टेड जो लिम्फेटिक नोड्स हैं वो ज्यादा लिम्फोसाइट्स बनाने के चक्कर के अंदर अपनी साइज को बड़ा कर लेती है। स्वलन इन लिम्फोसाइट नोड्स, हमारी बॉडी की जितनी भी लिम्फोसाइट्स होती है उनमें बहुत ज्यादा मोटापन आ जाता है। इस तरह का ये एक जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली एक एड्स पेशेंट के हो सकते हैं। और नॉर्मल जो एड्स पेशेंट्स है, जैसे वेट लॉस होना, कफ होना, फीवर होना, वीकनेस आना, बीपी लो, बीपी हाई रहना, राइट, बेसिक मेटाबॉलिक रेट का हाई होना, ये तो किसी भी डिजीज में हो सकते हैं। ये सारे आइडेंटिकल फीचर्स नहीं हुए HIV के। दैट्स व्हाई HIV पेशेंट के ये सारे के सारे सिम्टम्स पहचानना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसके टेस्ट क्या है, डायग्नोस करना पड़ता है पहले। एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इनके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। ये एक टेस्टिंग है जो बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडीज को लेकर के बायोटेक्नोलॉजी का टेस्ट है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडीज को बीच में मैक्स किया जाता है और पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, पर्टिकुलर पेशेंट इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द HIV और नॉट। AZT एक दवाई दी जाती है, AZT एजिडोटार्फिन थाइमिन। ये जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसको कुछ हद तक है इनएक्टिव करने का काम करेगा। और प्रोटीएज बैरियर ड्रग्स, ये प्रोटीएज बैरियर ड्रग्स क्या है, जब भी हमारी बॉडी में HIV एंटर करता है तो हमारी बॉडी के प्रोटीन सिंथेसिस को फास्ट कर देता है। प्रोटीन्स बनेंगे वो हमारी बॉडी में फिर नए डिस्ट्रक्टेबल टाइप की केमिकल कंपोजिशन करेगी, इसलिए वो स्पेशल टाइप के जो प्रोटीन सिंथेसिस होने का जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो कर दिया जाता है प्रोटीएज बैरियर ड्रग्स के थ्रू। इसके प्रिवेंशन और क्या है, प्रिवेंशन फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉइटस, स्पेशली कॉन्डम यूज किया जाए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉइटस की कंडीशंस के अंदर। दैट काइंड ऑफ द कंडिशन बिकॉज ऑफ द all about the some common disease particular human means। यहां पर एक चीज स्टार पॉइंट कर लें, इस तरह का पैथोजेनिक एजेंट जिसको हमारी बॉडी में स्प्रेड होने के लिए किसी भी इंटरमीडिएटर की जरूरत नहीं होती, दैट्स कॉल्ड मोनोजेनेटिक या मोनोजेनिक। मोनोजेनेटिक कीजिए उसको, मोनोजेनेटिक, ठीक है। टाइफाइड होने के लिए किसी भी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, अपनी पूरी जिंदगी वो एक साथ पूरा कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, राइट। तो हमारी एक ही होस्ट में दे कैन स्प्रेड, यदि उनको एक ही होस्ट की जरूरत है, यानी एक ही होस्ट की, वेक्टर की किसी जरूरत नहीं है, तो इस तरह से मोनोजेनेटिक कहते हैं।
इफ दे हैविंग अ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट, यदि वो दो होस्ट रखना चाहते हैं, एक इंटरमीडिएट और दूसरा प्रॉपर, जैसे ह्यूमन बीन्स हैं हम, और मॉस्किटो की बात करो फीमेल एनाफेल्स, फीमेल एनाफेल्स के अंदर पहले वो प्लाज्मोडियम आ रहा है और उसके बाद हमारे में आ रहा है, तो दैट्स कॉल्ड डायजेनेटिक। डायजेनेटिक। तो यहां पर ओनली वन होस्ट, होस्ट कौन होगा भैया? पेशेंट ही तो होगा। और डायजेनेटिक में क्या हुआ? टू होस्ट, एक तो पेशेंट हो गया और दूसरा हो गया वेक्टर। इस तरह से तो मलेरिया डायजेनेटिक, मलेरिया इज डायजेनेटिक, filariasis is a diagenetic, and typhoid is a diagenetic. Rest of all diseases are monogenic.